دیکھیے دیکھیے یہ دیا ہے، اس میں ہے نہیں، میں ڈینائی نہیں کرتا ہوں، جیسا باس مسلمان بولتے ہیں وہ مسواک سے مارو کہیں وہ سے مارو، ہوں میں ویسا نہیں جاتا. دیکھیے میں بولتا ہوں، ہوں میں تو اس پر ایک آرٹیکل لکھا ہوں، تو ہوں بیٹ یور وائف بول کر آرٹیکل لکھا ہوں میں اس کے اوپر. تو میں مطلب ایسا آپ کے وہ حساب نہیں. سے مارنا چاہیے بیوی کو؟ ہاں ہاں بتاتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو. میں ہوں وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہوں، سمجھے نا. اب جو حدیث کو نہیں بولتا تو وہ حدیث نہیں ہے، مگر یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے مارو، اور میں اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ ہاں اللہ ہوں نے بولا ہے مارو بول کر. دیکھیے ہوں مارنے کا طریقہ تو پہلے وہ نہیں ہے کہ جس کوئی نمک نہیں ہے مار ڈالو، یہ نہیں ہے ہوں ویسا کری مار ڈالو، ایسا تو نہیں تو ہے میں نا. پٹا لے کے مار سکتا ہوں؟ نہیں، اسے اللہ نے بولا پٹا لے کے مارو بول کے. ارے اللہ نے یہ بھی نہیں بولا نا مسواک سے مارو، پھوک مارو. تو میں تو اللہ نہیں نے یہ بول رہا بھی ہوں نہیں نا وہ، بولا. میں تو وہ نہیں بول ہاں رہا ہوں نا، میں تو نہیں تو بولا میں آپ کو مار سکتا ہوں مسواک نا، سے. قرآن اجازت دیتا ہے مجھے، پٹا لے کے مارو، لال ارے پیلا بھائی کر دو. آپ بولیں گے میں اس کی گان پہ مار کے درت لا ارے کر دوں کیا؟ میں بولا اللہ بولا میرے کو مارو بول کے، اب ایسا تو نہیں ہاں بول سکتے نا بھائی. تو آپ ایسی گندی گندی باتیں کریں گے، ہاں تو سنو اب پچھواڑی پہ مارو. ہاں وہ سنو، ایسا نہیں بولتا ہے. مارو کا مطلب وہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ابیوز کر دو، اس کو خون ہاں نکال دو، ہڈیاں توڑ ہاں دو، یہ نہیں ہے نا کدھر وہ. لکھا ہے ایسا؟ کدھر ارے لکھا ہے کہ ایسا نہیں مارنا ہے؟ ارے بھائی یہ کدھر لکھا ہے ایسا ہڈیاں توڑو بول کے؟ ہڈیاں توڑو نہیں، مارنے کا اپن حکم دیا ہے نا بھائی. یہ دیکھیں دیکھو. سنیے ہاں ہمارے کو بھی ایک انسانیت کی بات کرنا ہے، وہ اس کی قرآن طرح مت کو. انسانیت کہاں سکھا ہاں رہا ہے ادھر؟ ارے بھائی قرآن کہاں سکھا رہا ہے؟ سنیے ایک منٹ سنیے آپ. جو سو اللہ ہاں اجازت دی، اللہ اجازت دی ہے تو مار سکتے ہو بول کر، اب میں اس کو ایگری مطلب کر یو رہا ہوں. سپورٹ بیٹنگ آف وائف، آپ بیوی کو ارے مارنے کو بھائی میں سپورٹ آپ کرتے کو ہو؟ بول رہا ہوں نا آپ کے منہ پہ، کیا آپ کو سپورٹ بول کرتے رہا ہو؟ ہوں نا، تو آپ سمجھے نا. وہ بعد میں کیا آپ بات کرو کیا ہے وہ. یہ دیکھیے ہم لوگ جو ہے سو بچوں کو بھی مارتے ہیں، سمجھے نا، بچوں کو ہاں مارتے ہیں. اگر وہ غلطی کرے ہیں تو مارتے ہیں ہاں ہم ان کو. تو ہم یہ نہیں بیوی کہ غلطی کرے تو مارنے کا؟ ارے یار میرے کو تو بولنے دو نا، بتا رہا ہوں میں تمہارے کو. میں تو ارے میں سیدھا تو سیدھا جواب کیوں قبول نہیں کر دیتے لیا آپ ہے لوگ؟ نا، میں تو قبول کر لیا ہے نا وہ تو مارنے ہاں کی اجازت ہے بول کر. تو سمجھے آپ نا. اگری کرتے ہو اس چیز سے کہ بیوی کو مارا جائے؟ آپ کی سوچ بھی ایسی ارے ہے؟ یار میں تو بول رہا ہوں آپ کو، پھر کیا کو بول رہے ہیں، پھر میں سے پوچھ رہے ہیں. میرے کو تو بولنے گائز دو. آپ دیکھیے، یہ ہمارے سید بھائی جیسے انسان جو کافی یعنی اپنے آپ کو اسلام کو بہت اچھا پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہر بار، دیکھیے ان کی حقیقت بھی آپ لوگوں کے سامنے آ گئی. He اچھی بات. is also in favor of beating your wife, beating a woman. ہاں بیوی کو مارنے کے حق میں یہ بندہ بھی. اچھا آپ بھائی سوچئے تم کہ اسلام آپ کی سوچ کیسے کر دیتا ہے. سچا مسلم ہمارے ساتھ جڑے ہیں سر، آپ کا بہت بہت استقبال ہے. سچا مسلم صاحب انمیوٹ کریے. اور گائز جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں 3400 لوگ، آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ سٹریم کی ریچ بڑھے، ڈسکشن لوگوں تک پہنچے، اور جو ہمارا مقصد ہے لوگوں تک سچائی کو بتانا، وہ آپ کے سپورٹ کے بنا نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ لوگ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. جی سچا مسلم صاحب آپ کا استقبال ہے. جی جی شکریہ، بہت شکریہ. کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے آج؟ موضوع یہ ہے کہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو پیٹتا ہے اچھا تو کیا اسلام کے اندر اس کے لیے کوئی سزا مقرر ہے؟ ہے نا، کیوں نہیں ہے؟ کیوں چلیے قرآن پیٹتے؟ اور پہلے حدیث یہ پیش بتاؤ کریں. کس نے کہا کہ پیٹتے تو اس کے لیے سزا نہیں ہے؟ یا آپ نے کدھر سے یہ موضوع لیا ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کیا، آپ نے ابھی ایک جواب دیا. پہلے اچھے سے سن لیجئے سچا مسلم صاحب. جی میں نے آپ سے کہا کہ ہاں ایک شوہر اگر وہ اپنی بیوی کو پیٹے، ہاں پٹے سے مارے یا کسی اور چیز سے ہاں مارے، اس کو نیلا پیلا کر دے، ہرا کر دے، ہاں. کیا اسلام میں ایسے شوہر کو سزا بتائی گئی ہے ایسے شوہر کے لیے؟ اسلام کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہے ہی غلط بات ہے. اسلام جو ہے نا اس کو کیوں سزا نہیں دے گا؟ ابھی آپ کا جو ہے نا، آپ اپنی بیوی کو خواہ مخواہ مارنے لگے تو سزا تو ہوگی. آپ کو کسی بھی ملک کا ہاں کہاں قانون ہے وہ آپ کو سزا؟ وہ سزا دے گا. ہاں؟ کہاں ہے سزا؟ کہاں ہے سزا؟
किधर मतलब कहाँ है सजा? अभी किसी का दिमाग खराब हो तो अपनी बीवी को पीटना शुरू करेगा। अच्छा चलो, मैं ऐसा दिमाग खराब सहाबा का हुआ था और वो अपनी बीवियों को पीटते थे, बताऊं मैं अभी? किस वजह से? एक मिनट हाँ, रुको, किस वजह से? एक मिनट साहिल देखो एक सेकंड यार, बिफोर यू ये लो। ब्रिंग दैट हदीस, एक सेकंड, मुझे पता है उस ओके, हदीस में जलेबी क्या है। यार भाई मुझे कुरान की आयत पढ़ के बताएंगे जहाँ पे लिखा हुआ है मार सकते हो? ये कौन है? ये कौन बोल रहे हैं बीच में? यार मैं हूँ आदम। आदम। हाँ जी, अब जल्दी ये से बता दें कि कुरान आप की उस आयत के अंदर, कुरान की उस आयत के अंदर मारने के लिए सबब क्या दिया हुआ है? किधर है बताओ? लो मैं आपके सामने लेके आता हूँ मेरी जान, ले आओ, ले आओ, ले आओ। ये लो ये लो। मुझे पता है लेकिन ले आओ, आप कह हाँ रहे हाँ ना मुझे वो पता, ठीक है, तुम्हें पता ले है, आओ। मुझे पता, मैं तुमसे पहले बात की भी है। ये लो। हाँ, ले आओ, हाँ ले आओ। ये बकरा आपके पास आयत होगी, मुझे जरा अरबी में देख के बताओ कि यहाँ पे मारने के लिए जवाज क्या है? तुमने कहा बगैर किसी जवाज के मारने के ऊपर सजा है। तर्जुमा ले आओ ना इसका, मैं मोबाइल पे हूँ, मुझे जो है ना छोटा ही नजर आ रहा है। तर्जुमा यार ले आओ, पढ़ के सुनाओ। और इसका यहाँ पे तर्जुमा लिखा ले हुआ आओ है, ना। सुन लो हाँ, सुन लो, यहाँ पे लिखा हुआ है तुखाफूना। मैं तुखाफून का कहता मतलब क्या होता है? मैं कहता हूँ तर्जुमा इसका ले आओ ना, पढ़ के चलो सुनाओ ना। तर्जुमा लेके आते हैं। तो जी भाइयों आप वो सबने मुझे देख लिया, पता है, आप आप तिलावत सबने कर देख लिया। सकते हो, वो एक मुझे सेकंड पता यार, है। सबर यार, मेरी एक बात सेकंड। सुनो, वो मुझे पता है कि आप तिलावत कर सकते हो, आप ओके एक मुस्लिम है, मुझे थैंक यू। पता अच्छा जरा एक सेकंड वेट कीजिएगा। है। तमाम लोग जो इस हाँ, वक्त लाइव स्ट्रीम में देख रहे हैं, 3,500 लोग। भाई लोगों आपने देख लिया, इस भाई ने क्या तर्जमा लेके आओ, ठीक है? हाँ, हाँ। आप सबने देख लिया इस भाई ने क्या कहा है, तर्जमा मर्द लेके आओ। मर्द औरतों पर हाकिम है। हाँ ठीक है, बस हाकिम है? अब इसी फजीलत के, ठीक है। हाकिम का हाकिम क्यों मतलब है? ये है कि हाकिम क्यों है? वो सरबराह है ना घर के। क्यों 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 सरबराह क्या है? मतलब क्योंकि आपका मुल्क का सरबराह क्यों होते हैं भाई? नहीं नहीं सरबराह तो सर, बनाना पड़ते हैं। भाई एक ओ सेकंड, भाई, आयत को पढ़े, एक आयत मिनट को पढ़े, आयत को पढ़े, जी। बताएगी क्यों सरबराह है। क्या मतलब इसमें क्या लिखे, क्यों सरबराह है? पढ़े पढ़े बताएगी। हाँ, मर्द, पढ़े थोड़ा सा इसको मोटा करे, इसकी लिखाई जरा ज्यादा और करे। मोटा करो, मर्द औरतों पर हाकिम है बसबब और इस मोटा कर दे। फैलाना बसबब इस पड़ेगा आपको। एक मिनट, बसबब इस फजीलत के जो अल्लाह। ओ यार, इसको भी और बीच में जो है ना अपने जो है ना जनानियों की तरह ना हंसे। कोई ये बात नहीं, कोई कौन बात है जो नहीं, बिल्कुल? बड़ा अच्छा हाँ हंस ना, रहा है, अच्छा हंस रहा है, कोई बात नहीं, उसके हंसने की इजाजत है नहीं उसको। हंसने का मुकाम ही नहीं, इसके लिए रोने का मुकाम है। रोने इसको कोई इसका बात नहीं, रोने का बाद मुकाम है, हंस आगे रहे। बढ़ो बाद में यार। रुलाएंगे, बैक स्टेज में रुलाऊंगा उसे, टेंशन ना ले। नहीं मारूंगा उसको तो थप्पड़ आप बैठ के। इधर बात करने आए हैं जो है ना, अच्छा वो यार, तो मुझे अच्छा छोड़ पता यार है। उस बात को यार, बस सबब हाँ, इस फजीलत के अल्लाह ने बताइए क्यों हाकिम है, हाँ। क्यों हाकिम है, पढ़ दीजिए प्लीज। बस सबब इस फजीलत के जो, जो अल्लाह ने बास को बास पर दी है, और हम्म, सबब इसके कि जो वो को जो खर्च करते हैं अपने माल, पस वो जो नेक बीवियां अच्छा है। बस पास के बाद जाएंगे, पास बाद में जाएंगे। तो पहली बात क्या है, मर्द हाकिम क्यों है इस आयत के मुताबिक? भाई वो सरबराह है ना, वो खर्च करते हैं, खर्च की क्यों जिम्मेवारी है? उसके क्योंकि वो जिम्मे है खर्च ना। करता है, क्योंकि वो हाँ, खर्च खर्च करता है। करते हैं। ओके हाँ, नाउ वेट करेंगे, यहाँ पे वेट, यहाँ पे रुक हाँ, जाइए। इसका हाँ, मतलब है हाँ, अगर कोई मर्द आज की दुनिया में ऐसी औरत से शादी करता है जो हाँ, खर्च करती है, जो हाँ, कमाती है, और मर्द जो है हाँ। वो शुगर डैडी है। शुगर डैडी समझते हैं अब समझता हूँ, क्या समझता होता है हूँ। शुगर डैडी? और बस मैं समझ गई हूँ, आप जो बात करना चाहते हैं मैं समझ रहा हूँ। ओके, अगर मर्द शुगर डैडी है तो फिर ये हाँ, जो हुक्म है, जो उसका हाँ। हाकिम होना है, ये तो फिर औरत को बन जाना चाहिए। औरत की ये जिम्मेवारी ही नहीं है कि वो घर चलाएगी, अपने पैसा इररेलीवेंट, कमाएगी। और मेरी बात सुनो, नहीं इररिलेवेंट नहीं है, इररेलीवेंट है ना। इररिलेवेंट अल्लाह और ने, नहीं ना। देखे भाई, और मेरे भाई, अल्लाह ने फजीलत क्यों दी है, पहले ये बता दे इस कुरान की आयत में। और मैं फजीलत इसीलिए दी है कि घर का सरबराह वो है नहीं जो नहीं, घर घर के का सरबराह एक क्यों है? अरे भाई सरबराह कमाल क्यों करते है? हो। अल्लाह ताला ने बनाया है ना, अल्लाह ताला ने नहीं, बनाया है। क्योंकि वो खर्च करता है अपने माल से। खर्च करते हैं, लेकिन अल्लाह ने बनाया, खर्च करेगा, उसकी जिम्मेवारी अल्लाह अरे ताला ने दी है। एक सेकंड रुके, मेरी मेरे मेरी बात बात सुनो, सुने। आराम से मैं सुनो। 15 सेकंड बोलूंगा, आपने बीच में बोलना नहीं है, कान खोल के सुनना है, 15 सेकंड के लिए कान खोल के सुनना है। फिर मुझे भी बोलने दोगे? हाँ आप हाँ, भी फिर नहीं मैं 15 बोलेंगे? सेकंड आपको भी दूंगा, पूरे 15 सेकंड आपको दूंगा। जी। 15 सेकंड हो और से कान सुना है। मर्द हाँ, औरत का हाकिम है बसबब किस सबब के, जो अल्लाह ने बाज को बाज पे दिया, और क्या सबब दिया है, और बसबब इसके कि वो खर्च करते हैं अपने माल में से। अब 15 सेकंड के अंदर मैंने आपको बता दिया, ये अल्लाह कह रहा है हाँ। खर्च करने वाले की वजह से वो हाकिम है। अब आप बताएं क्यों नहीं है बिल्कुल, खर्च करने की आप वजह से? सही कह रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि उस अल्लाह ताला ने उसको सरबराह बनाया, खर्च की जिम्मेवारी उसकी है, जो घर के बेहतरीन। जितने भी मामलात है। एक मिनट सुनो, अभी आप लोग, मैंने कहा था अभी आप नहीं अरे बोलेंगे। 15 सेकंड हो गए, नहीं ना। अच्छा चलो फिर आप, हाँ ठीक है, 15 हो गए तो ये फिर तो मैं नहीं पूरा हो गया ना, बोलता हूँ। बात ये बात पूरी होगी। हाँ, अब आगे हाँ जी। चलें, अब आगे चलें, हाँ, अब हाँ, आगे बढ़े, जी। आगे बढ़े। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट।
اصل میں موبائل پہ بہت کم نظر میں آتے پڑھ ہیں. دوں اگر آپ کو برا نہ آپ مانے؟ پڑھے میں سن رہا ہوں, پڑھے. سن لیں. اب یہ میرے 15 سیکنڈ میں کاؤنٹ تو نہیں ہوں گے؟ آپ 20 سیکنڈ میں پڑھ لو, مجھے چلے. کوئی جلدی نہیں ہے. سر نیک بیویاں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں، یعنی وہ حکم جو ماننے والی نیک ہوتی ہوتی ہے, جو ہیں، جو نیک نیک ہوتی ہوتی ہے, ہے، جو نیک ہوتی ہے جو وہ ایک منٹ ایک بات کرنے دو. جی نیک بیوی, نیک سمجھتے ہو نیک کیا ہوتے ہیں؟ نیک نیک ہوتی ہیں، جو نیک ہوتی ہیں. ہاں, جو آپ لوگ کی طرح نہیں, جو آپ لوگ ہماری کی تو ہم ہوتی ہے, جو بیوی بن ہی نہیں آزاد. سکتے بھائی، کیا ڈنگر بنا اور کر رہے ہیں بیوی یار. نہیں, آپ لوگ کی بیویوں کی بات کر رہا ہوں, ارے آپ لوگ کی بھائی ہم بہنوں کی بیوی بات نہیں کر رہا بن ہوں. سکتے یار. آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بیوی بنیں گے. آپ کی سسٹر, آپ کی جو گھریلو عورتیں ہوتی ہیں ایکس مسلموں کی یا نان مسلموں کی, اس کی بات کر رہا ہوں. ان ابھی کی وہ آگے نیک بول, نہیں ہوتی آگے آپ بول. کے مطابق؟ اب وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نیک نہیں ہوتی. چل آگے بتاؤں گا. نہیں پہلے پہلے یہ کنفرم کر لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایکس منٹ, مسلم کی بہن، ایکس مسلم چل کی چل سن لے میں سن لے سن لے سن لے. سن ہو رہا سکتا ہے کہ ہوں جی. ایک ایکس مسلم کی بہن جو ہے وہ مسلمان ہی ہو، اس نے ابھی تک اسلام ہی نہ چھوڑا ہو، پھر تو وہ نیک نہیں رہی، جو کیونکہ ایکس مسلم ہو گیا اس کا بھائی تو وہ بھی نہیں, بد ہو گئی. اب نہیں, تیری جو ہے نا بہن ہے نا, وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتی, وہ ہوگی میری تیری بہن تو طرح. ہے ہی نہیں نا، پرابلم یہ ہے. اچھا, یہی تو پرابلم، میری اچھا بہن ہی نہیں ہے. پرسنلی لیکن پھر آپ نہیں میرا جو سمجھتے. سچا کوشچن ہے، مسلم چلو صاحب ٹاپک پہ بات کرو. سچا مسلم صاحب جی, ٹاپک پہ میں بات تو کرو. ٹاپک پہ کر رہا ہوں, بتاؤ آگے اچھا بولو. ٹاپک پہ آ جاتے ہیں واپس. اچھا اب جی یہ ہو گیا کہ وہ نیک بیویاں اطاعت شعار ہے، رائٹ. جی وہ غیب میں حفاظت بھی کرتی ہیں اپنے آپ کو، نیک بیویاں، بالکل. ٹھیک ہے. لیکن اللہ اب ایک اور بات بتانے لگا. اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہیں اپنی خواتین میں سے کسی سے سرکشی کا ڈر ہو، اندیشہ ہو، ہاں ڈر ہو، ہاں, سرکشی کا ڈر ہے، ابھی آپ کو اس نے سرکشی کی نہیں ہے، آپ کے سامنے اطاعت ڈر شعاری نہیں ہے, چھوڑی اندیشہ نہیں ہے. لکھے, اندیشہ اندیشہ ہے، ڈر. لکھے. اندیشہ اچھا ڈر ایک ہی چلو. چیز ہوتی ہے.
वो लफ्ज चलो ऐसे एक ही थे। समझो, चलो एक ही हाँ। समझो, ठीक है। यानी कि अभी उसने सरकशी की नहीं है, हाँ, करेक्ट? उनको नसीहत करो, अभी उसने सरकशी की नहीं है, राइट? ठीक है, ठीक है। अभी शायद वो थोड़ी सी आपको फील हो रहा है कि उसने नाक मुंह बनाया है, अच्छा, अभी उसने नाक मुंह बनाया, राइट? समझ रहा हूँ, बस बस बोलो आगे, बस तो इनको नसीहत करो, और नसीहत करो। और हाँ, और क्या करो? हाँ, इनके बिस्तरों में उनको तनहा छोड़ दो, सेक्स नहीं करना इसके तनहा साथ, छोड़ दो, ठीक है, और इनको मारो। और फिर मारो, ठीक है, फिर नहीं है, और मारो, और इनको ठीक है, मारो, फिर कहाँ है? ठीक नसीहत है, करो, आगे आगे फिर लिखे नसीहत हुए ना। करो, सुन लो, नसीहत हाँ, हाँ, करो, हाँ। चपेड़ मार के मुंह पे चपेड़ मारो, और साथ में रात को सेक्स ना करना। मुंह पे चपेड़ तो नहीं लेके इसमें, खैर भाई अद्रुब हुन्ना है ना, चपेड़ मारो, इनको मारो, चलो डंडे से मार लो, डंडे से मार मारो, लो, लेकिन हाँ हाँ आप मारो, डंडे से, हाँ जूती के मारो, ठीक है, साथ, ठीक है, डंडे के साथ या हाथ के साथ, चलो, टेल मी, चलो जिस तरह भी हो। हाँ, जिस तरह भी हो। अब मुझे बताएं, एक बीवी ने आपसे बदतमीजी भी नहीं की अभी तक, आपको सरकशी का अंदेशा है, डर है, आप उसके साथ बात भी करना छोड़ेंगे, उसको बिस्तर पे भी नहीं जाएंगे, और उसको मारेंगे भी, ये कौन अच्छा, सी इज्जत है औरत की? ठीक है। अभी इसमें गलत कौन सी बात है जिसपे आप लोग को इतराज है? जब आपकी बीवी है, वो गलत काम करेगी, उसका अंदेशा है कि वो गलत काम करे, उसको नसीहत करो, पहले नसीहत करो, ये नहीं कह के मारो, नसीहत करो। नसीहत का मतलब है कि वो राह रास्त पे आ जाएगी, ठीक है। अगर उस पर भी नहीं आती है तो उनके बिस्तर अलहदा कर दो, उससे जो है ना मतलब नाराजगी करो कि भाई उसके साथ जो है ना जो आप कह रहे हैं वही बात कर लो, ठीक है। अगर वो उस पर भी नहीं की तो मारो। मारो का ये झूठ मतलब तो नहीं है कि उसको उसको झूठ जान बोल, से मारो, ये मतलब नहीं। एक मिनट सुनो ना, नहीं नहीं, बीच में मत एक मिनट बोलो, से, एक से बीच झूठ में बोल ना रहे हो ना, बोलो। पहली बात ही झूठ है। तुम्हें किसने कहा यहाँ चलो पे जी, 1 2 3 है? दोबारा आयत पढ़ो, चलो जी। हाईलाइटेड है, पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है, पढ़ो यार आयत को पढ़ो। मैं तर्जुमे को देख के ही पढ़ रहा हूँ ना। हाँ जरा मैं दोबारा पढ़ो ना, इधर देखते हैं, पहले, बाद में और सबसे आखिर में ये कहाँ लिखा हुआ है, जरा एक, दोबारा पढ़ो ना। हाँ अच्छा ये मैं पढ़ लिखा हुआ देता है, हूँ, मैं बताता हूँ, मैं मैं बताता पढ़ हूँ। देता हूँ। पढ़ो लिखा पहले, हुआ अच्छा है, मुस्लिम साहब, लिखा हुआ है। पढ़ो। अच्छा इसका मुंह मुस्लिम बंद करो, साहब, अरे जब तक इस सच्चा मुंहफट बंदे मुस्लिम का मुंह साहब नहीं रुक बंद जाओ करोगे यार। बात नहीं हो सकेगी। सच्चा मुस्लिम साहब, पर्सनल अटैक नहीं। आपने कहा कि लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूं, आप बताइए किधर लिखा हुआ है। ये आप, मुझे मालूम है कि अभी आप भागना चाहते हैं, तो आप अभी ये चाह रहे हैं कि मैं कुछ एडम को बोलूं, वो गाली दे और मेरे को निकाल दे, ये लोग मसला ही खत्म हो जाए। ऐसे नहीं करो ना यार, अगर इल्मी गुफ्तगू करना है तो हाँ बोलो, नहीं तो ऐसे ही बोल के चले जाओ। मैं नहीं कर सकता, मेरे पास जवाब नहीं है। अब मैं पढ़ रहा हूँ, आपने नंबर वाइज जो आपने कहा है कि ये सीक्वेंस में चलना है, इधर कहाँ है वो आपको बताना है, कहाँ लिखा हुआ है। देखिए, सरकशी का अंदेशा हो, बस इनको नसीहत करो और इनको इनके बिस्तर में तन्हा छोड़ दो और इनको मारो, ठीक है। अब यहाँ पे सीक्वेंस का बताया गया, यहाँ पे सीक्वेंस बताने के लिए ऐसा होना चाहिए था कि इनको पहले नसीहत करो, फिर अगर ना माने तो इनके बिस्तर अलग करो, तन्हा छोड़ दो, अगर फिर भी ना माने फिर इनको मारो। ऐसा होना चाहिए था, इतना सिंपल सी बात है। यहाँ पे वैसा नहीं लिखा है, यहाँ पे और लिखा है, ये करना है और ये करना है और ये करना है, ठीक है। आप कोई साहिल बीमार सर, पड़ते हो, हाँ जी एंजल जी, एक बात आपका बोलना चाह इस्तकबाल है। रहे एक बात बोलना चाह रहे जी जी, थैंक यू। एक बात इनसे पूछना चाह रहे थे, अभी ये जस्ट बोलकर निकले थे, ठीक है। शायद आप लोग ध्यान नहीं दिए इनकी बातों पे कि गैर एक्स मुस्लिम और गैर मुस्लिम जो है औरतें, वो नेक नहीं होती है। हाँ किस हिसाब से नेक नहीं होती, जरा इनका जवाब मुझे चाहिए, अभी वो इनसे बताएंगे बात बोले, करनी है। हाँ वो बताएंगे बोले, हाँ वो बताइए आप बताएंगे सर। बोले, उनसे पूछ वो लेंगे। टॉपिक पे हाँ बात करेंगे वहां पे। टॉपिक, हाँ एंजल जी वो हम पूछेंगे इनसे, ये पहले भागे तो नहीं ना। जी जी अच्छा इतनी बात तो साफ हो गई है, जैसे मिसाल के तौर पे आप जो है डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको बोलता है आपको इंजेक्शन लेना है और एंटीबायोटिक खाना है और पेन किलर खाना है। अगर ऐसा बोले डॉक्टर, इसका मतलब है कि आपको इंजेक्शन भी लेना है, एंटीबायोटिक भी खाना है और पेन किलर भी खाना है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा बोले कि पहले आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा, अगर वो काम ना करे फिर आप एंटीबायोटिक लोगे, अगर एंटीबायोटिक भी काम ना करे फिर आप पेन किलर लोगे, अगर पेन किलर भी काम ना करे फिर आपको एंटीबायोटिक खाना। अगर ऐसा है तो सीक्वेंस आ गया। और का लफ्ज आया मतलब आपको तीनों करना है। यहाँ पे और का लफ्ज आया है तो यहाँ पे सीक्वेंस की बात नहीं हो रही है। जो तर्जुमा है सच्चा मुस्लिम साहब, आपको अपना आर्ग्यूमेंट रखना है। आई होप कि मैंने क्लियर किया हो। ओके, अभी बात करूं? जी हेलो, आवाज आ रही है ना?
आ रही है, करिए। हाँ ठीक है। आप कह रहे हैं कि इसमें सब लिखे कि सारे इकट्ठा ठीक है क्यूआरी कर लो ना, उसका बिस्तरा भी कर लो, चलो मैं आपकी बात मानता हूँ, इस तरह ही लिखा हुआ है। अभी मुझे पहले तो इस तर्जुमे पे जो है ना वो नहीं, अरबी तो मुझे खैर नहीं आती, लेकिन आप लोग अपने मतलब की बात इस पे आखिर पे क्या लिखे है, और फिर अगर वो तुम्हारी इताअत करे तो उनके खिलाफ खामखा की ज्यादती की राह तलाश मत करो। आप इससे क्या मतलब लेते हैं? इसका मतलब ये कि जुल्म ना करो, इसका मतलब ये है कि जुल्म मत करो, इसका मतलब है कि जुल्म मत करो। आपकी मैं बात, बताता हूँ मतलब, आपकी अब बात आपने जी। सवाल रुक किया, जाओ अब थोड़ा। जवाब लेना। हाँ। इसका मतलब है ये तीनों काम करने के बाद मजीद उन्हें नहीं करना अगर वो माफी मांग ले। फॉर एग्जाम्पल, नहीं एक्सक्यूज ना, मी, लेट मी मैं आंसर। एग्री नहीं कर रहा हूँ, सवाल मैं किया, मुझे एग्री नहीं आंसर कर देने रहा दो। हूँ। तुमने सवाल किया, आंसर देने दो, ठीक है। अब आंसर सुन लो ये ना है भाई, बीच कि में ये क्यों टोक रहे हो? तीनों काम तुमने कर लिए हैं। अब अगर उसने माफी मांग ली है तुमसे, ठीक है, उसे माफ कर दो, मजीद नहीं उसे शर्त तंग करना, माफी की है, तलाक नहीं देनी। शर्त माफी की है, शर्त हाँ जी, माफी की है एडम, ये पॉइंट हाँ, आपको शर्त बोलना माफी की पड़ेगा, है। शर्त माफी हाँ, की है। और हाँ, साहिल और उससे दूसरी बात, बाज आ जाए। हाँ, और दूसरी बात, यहाँ पे सरकशी का अंदेशा है। अभी उसने सामने अंदेशा है। खड़े होके कहा नहीं चल दफा, मैं तेरी बात सुनती नहीं। अंदेशा हो रहा है तुम्हें सरकशी का भी, और तुम इन 3 हदों तक जा सकते हो, और दरमियान में अलिफ वाव रे और है। अच्छा, ठीक है, मैं इसकी एक मिसाल दे देता हूँ, अंदेशा कैसे हो सकता है, मैं मिसाल दे देता हूँ इनको। जैसा मैंने अभी दवा की मिसाल दी और इनको समझ में आ गया, फिर ये बात पलट दी है कि मुझे इस तर्जुमे में भरोसा नहीं है, ठीक है, हालांकि इनको अरबी आती भी नहीं। तो मैं एक मिसाल देता हूं कि आप जो अंदेशा कुरान कह रहा है वो कैसे हो सकता है एक आदमी को अंदेशा कि उसकी बीवी जो है वो हो सकता है कुछ गलत काम करे। मिसाल के तौर पे बीवी ने एक यानी कुछ सामान मंगाया है, ठीक है, डिलीवरी वाला बंदा आता है लेके और बोलता है कि भाई मैं अभी आपकी लिफ्ट बंद हो चुकी है तो मैं ऊपर नहीं चढ़ के आ सकता हूँ, आप एक काम करो कि आप नीचे आके मुझसे सामान ले लो, ठीक है। अब ये जो इसकी वाइफ है इनकी, ये भाई साहब की, नीचे जाती है सामान लेने के लिए, और ये हजरत जो है वो दूर से कहीं देख लेते कि ये कोई नामहरम से ये बात कर रही है। डिलीवरी ली उसने, इन्होंने नहीं देखा, ठीक है, इन्होंने ये देखा कि उनकी वाइफ जो है वो किसी नामहरम से बात कर रही है और इनको लगा मेरी वाइफ मेरे को धोखा दे रही है। ये अंदेशा हुआ इनको, घर पे जाके इन्होंने पीटा, बिस्तर अलग पहले समझाया, बिस्तर अलग किया, पीट भी दिया। बाद में उनकी वाइफ बोलती है मुझे माफ कर दो, मेरा वो नहीं था, ये प्रॉब्लम था, मैं ऐसी नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं करूंगी अगर कर भी रही हूं। अब इस पे अल्लाह कह रहा है कि इसको जो है मजीद परेशान नहीं करो, उसको जुल्म नहीं करो। यही बात है, ऐसी बात है ना एडम, अंदेशा ऐसी हो सकता है। अंदेशा मैंने चीजों का हो सकता है, आपने एक एग्जांपल दे दी, ठीक है, कोई हाँ, बात नहीं, एग्जाम्पल दे दिया, ओके। जी मोमिन भाई अनम्यूट करें आप। जी हेलो जी जनाब, क्या सोच है आपकी? अरे अनम्यूट जी करके बोलो यार। हाँ जी जी, देखिए खाली एक चीज को पढ़ लेने से पूरा मसला तो निकाला नहीं जा सकता। ये करने लग जाए तो आप मुफ्ती ना बन जाएंगे। मैं आपको तो मुफ्ती से क्या ज्यादा चाहते हैं? रेफरेंसेस दे दूंगा, आप मुझे बता दें। नहीं देखिए, बहुत सारे रेफरेंसेस ऐसे भी हैं अभी जो लिटरली तर्जुमा जिनका नहीं किया गया है। मेरे पास वो भी हैं सर, मेरे पास अरबी के रेफरेंसेस भी हैं, आप हुक्म करें। तो सारी चीजों को मिला करके मसाइल बनाया जाता है ना, तो हाँ, तो उसमें मेरे पास हैं सारे मसले, आप हुक्म करें। तो आप आप कौन तो से आप सेक्ट तो से, आप आप तो कौन आपको तो से ये भी सेक्ट से पता मैं, आप तो कौन से आपको तो सेक्ट ये से। भी पता होगा कि अगर बहुत ज्यादा बीट किया जाता है तो फिर मर्द को भी सजा मिलती है, अगर उसने भी ये अर्ली तो वो ना डेवलपमेंट जायज नहीं हो है। जाएगी ना, तो वो तो ना जायज हो जाएगा ना, फिर क्या होगा? उसके एविडेंस भले ही नहीं मिल पाएंगे लेकिन अल्लाह उससे गुनाह तो देगा ना। अल्लाह गुनाह देगा, कैसे अच्छा, गुनाह देगा? अल्लाह 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 तो कहता है, हदीस से अब साबित हो जाता, मैं हदीस हदीस में से चला जाता हूँ, साबित हो जाता है ना। मैं हदीस में चला जाता तो भाई हूँ, मैं हदीस में चला जाता हूँ। आपके प्यारे सुहाबियों ने, और सबसे पहले आपके जो सबसे अच्छे सुहाबी थे, कौन थे सबसे अच्छे सुहाबी? अबू बकर क्या अली? इसमें भी उमर, इख्तिलाफ है। सबसे अच्छे उमर है सर, जिन्होंने आपको कुरान की आयतें दी है ना। भाई सहाबियों ने तो शुरू के दौर में शराब भी पी है। हाँ हाँ बिल्कुल भी है, क्योंकि सही शराब है। मिलावट थी हाँ ना। तो आप ऐसे नहीं कह सकते, तो आप ये नहीं बता सकते पूरी शरीयत को। अच्छा आप बोल सकते हो कि आपके सहाबी बेवड़े थे? दौरे जाहिलियत में तो सब जाहिल थे ना भाई। हाँ तो ऐसे बोल सकते बेवड़े हो थे। कि आपके सहाबी बेवड़े थे। भाई सेंसिबल बात किया करो थोड़ी। इतनी ये सेंसिबल सेंसिबल नहीं है। बात यार ठेले वाला भी समझ जाएगा भाई,
तभी पूछ रहा हूँ कि आप बोल सकते हो कि हाँ हमारे साहबी बेवड़े थे। भाई मुझसे कंटेंट ना बना, बकवास नहीं, सीधी सीधी वैसे बात मिर्जा करो। गालिब, हजरत अली इतने बड़े बेवड़े थे कि वो नमाज पढ़ने से पहले उन्होंने इतनी शराब पी ली कि नमाज में उनसे कुरान की आयत कुल औज़ु बिरब्बिल फलक सही नहीं पढ़ी गई। फलक थी कि नास थी, मुझे भूल गया, सही नहीं पढ़ी गई। उसके बाद अल्लाह ने नाजिल किया था ये कुरान की आयत, या कोई और आयत थी, मुझे भूल रहा है इस वक्त, सॉरी। लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने कुरान की आयत सही नहीं पढ़ी, तो फिर अल्लाह ने नाजिल किया कि जब तुम नशे की हालत में हो तो शराब के करीब मत जाया करो। ये भी हदीस है। हजरत अली इतने बड़े बेवड़े थे कि कुरान की आयत नहीं सही पढ़ सके, हालांकि अरबी का कुरान है, अरबों के में नाजिल है, और हजरत अली अरबी बोलते हैं, फिर भी अरबी नहीं सही पढ़ सके मिर्जा गालिब भाई। तो उसके बाद आयत आती है हो कि गया। जब संतराबाजी किए रहो तो नमाज मत पढ़ो, ऐसे तब ही ना? मत जाओ। नहीं नहीं, तब नमाज के करीब ना जाओ जब तुम नशे की हालत में। हाँ बिल्कुल। वही ना, वही बोल रहे हो हैं। गया। ये संतरेबाजी क्या होती है? अच्छा, कोई शराब का नाम होगा, ठीक है ठीक सबसे है, चले। सस्ता दारू संतरा है इंडिया में। कोई शराब के दारू का कोई कोई ब्रांड है ये संतरा? सबसे हाँ सस्ती हाँ। दारू संतरा होती है इंडिया में। सबसे सस्ती और सबसे खतरनाक। चलिए एडम भाई वो बता फुल नशा दीजिए आप मिलेगा। अपनी ऑडियंस को, जहाँ पर ये है कि जो क्या? शौहर को भी मार पड़ेगी अगर बीवी को उसने बहुत ज्यादा मारा है तो। नहीं, साहिल कौन सा भाई नाम आ लिंक रहा पेश है? कर दो। हाँ साहिल भाई वो लिंक पेश कर दो, उसकी जरूरत है। अब जरूरत है साहिल भाई, आ जाएं आप, हदीस ले आए इनके लिए पहले, फिर मैं अपनी हदीसें दूंगा। हाँ नहीं, उसमें ना ये इस्लामिक क्यूए का। वेबसाइट वाले जलेबियों की दुकान खोल दिए हैं। अच्छा, ये क्यूए का पहले देख लेते हैं, फिर हदीस भी देख लेंगे। एक जी मिनट। क्यूए का देख लें, क्या क्यूए? आर्टिकल। हाँ आर्टिकल नहीं, गलत आर्टिकल ना आर्टिकल से सोचो। पहले सर ये ले, फिर अभी आर्टिकल दिखाना चाहते हो? अच्छा चले आर्टिकल दिखा लें, हम दिखाएं दिखाएं आर्टिकल पहले देख लेते हैं ना, उसके दिखाएं बाद फिर दिखाएं वो भी देख लेंगे आपकी दिखाएं। हदीस से। अरे बहुत माल मसाला बहुत पड़ा है अपने पास, टेंशन नहीं है। ये देखिए, डज अ वुमन हैव द राइट टू हिट हर हस्बैंड इफ ही मिसट्रीट्स हर? क्या एक औरत को ये थोड़ा हक जूम है मारे। कि वो अपने शौहर को मार सके? कहाँ गया जूम वाला बटन, कहाँ गया रे कंट्रोल भाई? प्लस, कंट्रोल प्लस। हाँ भाई नहीं है राइट उसके पास, आगे बढ़ो। नहीं उसमें है, मानते दिखाना हो इस क्या है? बात को? हाँ बहुत क्लियरली मानते नहीं तो है अभी राइट। थोड़ी देर पहले तो अभी थोड़ी देर पहले तो बोल रहे थे कि बीवी भी उसकी हड्डी तोड़ सकती है। वो जब क्लेम करेगी गवर्नमेंट में तो गवर्नमेंट उसके शौहर को पकड़ेगी, वहां पर उसको वो है गवर्नमेंट की बात नहीं हो ताजीर रही करने की है। भाई। बीवी भाई मार सकती होती है क्या? है भाई, भाई होती है। तो ऐसे तो यार तुम लोग चोरी वगैरह वाली सारी चीजें हटा डालो, उसकी स्ट्रीम्स क्यों भाई करते हो चोरी बैठ पे के कि तो चोर का हाथ क्यों भाई काटा चोरी जाएगा, क्योंकि वो भी तो चोरी गवर्नमेंट में चोरी ही पे तो होती है ना। बाकायदा, मेरी बात सुनो, ये फॉल्स इक्विवेलेंस मत करो। चोरी पे तो बाकायदा अल्लाह ने सजा सुनाई है, बताई है तो वो भी कि गवर्नमेंट चोरी के लिए है होगी ना, तो। वो भी गवर्नमेंट के लिए है ना। हाँ तो इधर सजा तो बताओ पहले। तो इधर भी गवर्नमेंट की तरफ से सजा है। सजा कहाँ है? अल्लाह ने हाँ कहाँ सजा बताया कि यही है, गवर्नमेंट ये सजा देगी? कहाँ है सजा? सजा ताजीर है ना, बता तो रहे हैं, किसास है पूरा। अरे जो भी हद है करोगे, यार। दांत तोड़ो, दांत नहीं, किसास के वर्सेस तो तुमने पढ़े ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है, इतना ज्यादा तबलीग में तुमने टाइम लगाया है तो वो वर्सेस यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं। अच्छा यहाँ पे अप्लाई होता है? हाँ होते हैं, ओके, ताजीर अप्लाई होता है। किसास वाले वर्ड्स। के साथ वाले हाँ, वर्ड। हाथ अच्छा मुझे तोड़ा ये तो हाथ बताइए, तोड़ा जाएगा, दांत अगर तोड़ दिया है तो बीवी का हक होगा कि वो दांत तोड़े। नहीं बीवी का हक नहीं होगा, अभी तुमने क्या कि जिसने होगा, जिसने नहीं बीवी का हक गवर्नमेंट नहीं है, देगी ना, बीवी गवर्नमेंट का हक देगी, नहीं है नहीं ना, नहीं, बीवी का हक नहीं है ना। गवर्नमेंट में क्लेम करने के बाद होता है, मैंने क्या पूछा? गवर्नमेंट में क्लेम करने के बाद, मैंने क्या पूछा? गवर्नमेंट में बीवी क्लेम बीवी करने के मारेगी, बाद, बीवी मारेगी। खुद से नहीं, गवर्नमेंट के क्लेम करने के बाद। वंस अगेन, बीवी मारेगी या गवर्नमेंट कोई सजा देगा? गवर्नमेंट बंदे को पकड़ेगा, गवर्नमेंट बीवी को लाएगा, बीवी से कहेगा इसका दांत तोड़ो, बीवी से ये कहेगा है। दान तोड़ो। ओके, मुझे हाँ, किसी और भी अगर नहीं तोड़ मुझे सकते तो जल्लाद तोड़ेगा। बेहतरीन, मुझे ऐसा करे किसी भी शरिया मैनुअल में ये बात दिखा दें कि ये आपके शरिया है, क्योंकि आपने कहा कि ये लॉ है, कानून जो होता है वो आपके शरिया मैनुअल्स में लिखा हुआ है, आप ये दिखा सकते हैं? भाई लैपटॉप से तो यार तुमने मेरी आईडीज ब्लॉक कर रखी है, कहो तो दिखा दूं आईडी ब्लॉक है। जाए लेके आए, आपकी कौन सी आईडी है? इनकी आईडी स्पेशल निकाल दें, अगर इन्होंने पीछे कोई गाली शली निकाली है, ब्लॉक हुए, तो भी इनको नहीं निकाल दें। गाली वाली तो नहीं निकाली, लेकिन हाँ बैंड बजा दी थी। ओके, आप बैंड नहीं बजा सकते कभी भी, आप में इतनी जरूरत ही नहीं है। भाई कौन तुम सी लोगों आईडी ने तो बोला पढ़ा जो है, तुम निकालता लोगों को हूँ? तो पता होगा ना। जी चले आप बता दें सर। अभी पता तो होगा ना तुम लोग को, किसास वाला मामला।
مجھے قصاص والا معاملہ پتہ ہے لیکن اس کے اچھا اندر آپ کی آڈینس سے سن رہی ہے, آپ کی آڈینس سے سن رہی ہے نا, ہاں آڈینس سے کہہ رہا ہوں طارق مسعود صاحب کی ویڈیوز جا کر کے دیکھ لیں, وہ مفتی ہیں, انہوں نے بہت کلیئرلی اس بات کو بیان کیا ہے. سب لوگ یوٹیوب چینل پر جا کر کے دیکھو بھائی. پیارے بچے رک جاؤ. آئی ڈی بتاؤ کون سی آئی ڈی تمہاری بلاک ہے, ابھی ان بلاک کرتا ہوں, لیپ ٹاپ سے بتاؤ. پی ڈبلیو کے نام سے ہوگی, پی ڈبلو فزکس والا کے نام سے ہوگی وہ. فزکس والا, رکو ابھی دیکھ لیتا ہوں. اب یہ دیکھیں, آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ کے اسکالرس کیا لکھتے ہیں اس آیت کے مسئلے کے اندر. ٹھیک ہے, یہ آیت حضرت سعد بن ربیعہ کے حق میں نازل ہوئی. ان کی بیوی حضرت حبتہ بنت زید بن حارث بن ابی زبیر نے نافرمانی کی تو انہوں نے اسے تماچا مارا, چپیڑ ماری, پٹیخ. تو ان کے والد نے عرض کی, یا رسول اللہ میری بیٹی سعد کو دی تھی, اس نے اسے تماچے مارا. نبی کریم نے فرمایا وہ اپنے خاوند سے قصاص لے. آپ نے کہا بیوی قصاص لے سکتی ہے, رائٹ. نبی پاک نے کہا قصاص لے, کہا نبی پاک نے قصاص لے. پڑھ رہے ہیں آپ؟ ہلو, آگے بڑھیے. ہاں, وہ اپنے باپ کے ساتھ واپس لوٹی تاکہ اپنے خاوند سے قصاص لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹ آؤ میرے پاس, جبرائیل آیا. فوراً جبرائیل آ گیا. پس اللہ نے آیت نازل فرمائی. نبی کریم سے فرمایا ہم نے ایک امر کا ارادہ کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے دوسرے امر کا ارادہ فرمایا. بات ختم. اللہ نے کہہ دیا نہیں کوئی نہیں قصاص لے سکتے. اب پہلا حکم ختم ہو گیا ہے, نبی نے کہا قصاص لو, لیکن یہ آیت آ گئی ہے, آیت آ گئی ہے, تم انہیں مارو, ختم. نہیں ابھی قصاص بھی لے ہے, سکتے ابھی بھی لا ہے بھائی. ہے بھائی, نہیں میں نے نہیں آپ کو ہے, دکھا ابھی یار, بھی یہ ہے. غلط کہہ رہا ہے, یہ کہہ دو قرطبی پاگل کا بچہ ہے یار. یہ دیکھیں ایک اور آیت. ایک اور بندہ تھا جمیلہ بنت ابی, اور ان کے خاوند ثابت بن قیس میں نازل ہوئی. کلبی نے کہا یہ عمیر بنت محمد مسلمہ ان کے خاندان سعد بن ربیعہ کے بارے میں نازل ہوئی. بعض انہوں نے فرمایا اس کا سبب ام سلمہ کا پہلا کول ہے, وغیرہ وغیرہ, ملٹیپل. لیکن یہی ہے کہ چپیڑ مارنے کی وجہ سے ہوا. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں, ہوا کچھ یوں کہ بعد میں اسما بنت ابی بکر کی جو بیوی تھی نا, سوری خامن تھا نا, اس نے ان کو بڑے زور زور سے مارا. ارے میں آپ یار کو اپنے بتاتا ہوں. ورڈ ہٹاؤ, بات سنو, سیدھی سیدھی سنو, سنو 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 سنو. یار, یہ دیکھو میں سیدھے سیدھے بتا رہا ہوں. یہ دیکھو یہ جو ہے ابو بکر کی بیٹی جو تھی اسما, یہ دیکھو میں آپ کو دکھاتا ہوں. کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, میں آپ کے پاس ہوں, ٹینشن نہیں لینے کا. کیوں ٹینشن نہیں لینے کا؟ کیونکہ میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں نا. تو میں جب آپ کے پاس بیٹھا ہوں تو میں آپ کو چیزیں پورے ریفرنس کے ساتھ دے رہا ہوں, تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے ہم آگے چلتے ہیں. تو پتہ نہیں یہ کیا ہو جاتا ہے بار بار اس ویب سائٹ کو, مجھے اس کی یہ بھی بڑی نافرمانی پسند ہے, یہ بھی کسی دن مجھ سے مار کھائے گی. یہ دیکھیں, حضرت زبیر بن عوام کی بیوی تھی, کون؟ اسما بنت ابی بکر. وہ باہر نکلتی تھی حتیٰ کہ انہیں اعتاب آ گیا, ان کو بہت غصہ آیا. حضرت زبیر بن عوام نے اسے اور اس کی سوکن کو, یعنی کہ دونوں بیویوں کو اعتاب کیا, پھر ایک بال دوسری کے بالوں کے ساتھ باندھ دیے اور انہیں سخت سزائیں دیں. یعنی دو بیویوں کو بالوں سے پکڑ کے آپس میں باندھ دیا. سوکن جو تھی نا وہ بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی تھی, اور اسما زیادہ بچے پیدا کرنے والی نہیں تھی. بس اسے ضربیں بھی زیادہ لگی. کیوں زیادہ لگی؟ بچے بھی تو کم پیدا کرتی ہے اور بدتمیزی بھی کرتی ہے, تیری پٹیخ. حضرت اسما نے اپنے باپ حضرت ابو بکر سے شکایت کی. حضرت ابو بکر نے اسے کہا اے بیٹی صبر کر, زبیر صالح آدمی ہے, شاید تیری خاوند جنت میں ہوگا, اور مجھے خبر پہنچی ہے جب مرد بیوی سے ابتکار کرتا ہے تو جنگ میں اس سے نکاح کرے گا. سر مجھے یہ بتائیے آپ کس حساب سے یہ والی بونگی مار رہے ہیں کہ وہ لے سکتی ہے؟ آپ کے صحابیوں نے تو لیا نہیں, ابو بکر نے تو اپنی بیٹی کا نہیں لیا بدلہ. آپ کہاں سے بونگیاں لے کے آ رہے ہیں؟ ابو بکر کی بیٹی اور اس کی سوکن کہتے ہیں ایک ہی خاوند کی دو بیویاں اگر ہوں تو بیویاں بھائی آپس وہ میں تم سوکن کو بن 8 جاتی ہیں. سال مدرسے پڑھنے کے بعد سمجھ میں آئے گا, ایسے تو یار میں نے ارے ہو آٹھویں سے چکا. میں نے بھائی 18 ایسے تو سال میڈیکل مدرسے کی میں پڑھا, کتابیں, ایسے تو میڈیکل کی کتابیں اٹھا کر کے کوئی بھی میں ایم بی نے بی ایس بن 18 سکتا ہے, سال ایسا نہیں مدرسے ہو میں پڑھا. سکتا. ٹینشن نہیں لو اس بات سے. آگے چلو. مائک تو ہٹا لینے دیجیے پہلے اس کو منہ کے پاس سے, یار منہ پہ ہی رکھ کے مائک بول رہے ہیں اتنا دیر سے, کان پھاڑ رہا ہے. آپ ہیڈ فون ہٹا لیجیے نا میم. ہیڈ فون میرا ڈالیں گے تو سنیں ہٹا گے ہوا کیسے ہے ڈنگر؟ پاگل. یار سانس کا آواز آ رہا ہے, آپ کی آواز کم اور سانس پہ زیادہ آ رہا ہے کان پہ, کھڑ 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 کھڑ. ساحل بھائی آپ نے دیکھی گیم؟ ان کا آئی ڈی بھی میں نے ان بلاک کر دیا ہے. ان کو اگر اپنے لیپ ٹاپ سے کوئی حوالہ دینا ہے تو دے سکتے ہیں. اب ساحل یہ دیکھیں کہ اسما جس کا باپ ابو بکر ہے
उसने अपनी बीवी का किसास, अपनी बेटी का किसास नहीं लिया। हाँ, हालांकि उसकी बेटी के खावंद ने उसकी बेटी को और एक औरत को पकड़ा और बालों से बांध दिया और खूब चित्रोल की। अबू बकर ने और कहा कोई इधर बात एक नहीं। हदीस भी है, इधर एक हदीस भी है एडम, वो जो लाल पीला करने वाली, सही बुखारी की हदीस है 5825। बिल्कुल। इसमें देखो, आयशा ने बयान किया कि वो खातून सब्ज, यहाँ से शुरू करते हैं, रिफा ने कि इन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी, फिर इनसे अब्दुर्रहमान बिन जुबैर कुर्जी ने निकाह कर लिया था। आयशा ने बयान किया कि वो खातून सब्ज और सब्ज ओढ़नी ओढ़े हुए थी। इन्होंने आयशा से अपने शौहर की शिकायत की और अपने जिस्म पर सब्ज निशानात चोट के दिखाए। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए तो जैसा कि आदत है, इक्रिमा ने बयान किया कि औरतें आपस में एक दूसरे की मदद करती है। आयशा ने नबी करीम से कहा कि किसी ईमान वाली औरत का मैंने इससे ज्यादा बुरा हाल नहीं देखा, इनका जिस्म इनके कपड़े से भी ज्यादा बुरा हो गया है। बयान किया कि इनके शौहर ने भी सुन लिया था कि इनकी बीवी नबी करीम के पास गई है, चुनांचे वो भी आ गए और इनके साथ इनके 2 बच्चे इनसे पहले बीवी के थे। इनकी बीवी ने कहा, अल्लाह की कसम मुझे इनसे कोई और शिकायत नहीं, अलबत्ता इनके